عزیز طلباء اور ناظرین آداب، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ موضوع ہے ہماری صحت اور تندرستی کا۔ صحت اور تندرستی کے کئی طریقے ہوتے ہیں، جس میں صبح کی سیر کرنا ہوتا ہے، یوگا کرنا ہوتا ہے، اور کھیل بھی ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے ہمارے کھیل۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرست رہنے کے لیے اچھی غذا کے ساتھ ساتھ ورزش بھی بہت ضروری ہے۔ ورزش کرنے سے انسان نہ صرف چاق و چوبند رہتا ہے، بلکہ اس کا دماغ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے، ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ رہتا ہے۔ ورزش کے یوں تو بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے ایک کھیل کود بھی ہے۔ اس میں حصہ لینے سے ایک تو جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے اور دوسرے لطف بھی آتا ہے۔ ہمارے ملک میں کئی ایسے کھیل ہیں جو کسی علاقے یا خطے سے مخصوص ہیں۔ کھیل یکجہتی کے جذبے کو فروغ دیتے ہیں۔ کھیلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ اس سے اتحاد کو بھی تقویت ملتی ہے۔ کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر بچے بے حد پسند کرتے ہیں۔ ان کھیلوں کے لیے زیادہ ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہوتی اور لطف بھی پورا ملتا ہے، جیسے پٹھو، ستولیا، پکڑم پکڑائی، آنکھ مچولی، بتا کود، گدا مار اور لٹو وغیرہ۔ کچھ کھیل ایسے بھی ہیں جن میں بچوں کے ساتھ ساتھ نوجوان بھی دلچسپی لیتے ہیں اور بڑے شوق سے کھیلتے ہیں۔ مثال کے طور پر کشتی، کبڈی، گلی ڈنڈا، کھوکھو، رسہ کشی، بھالا پھینک، تیراکی اور پتنگ بازی وغیرہ۔ ان کھیلوں میں سے کئی اولمپک کھیلوں میں بھی شامل ہو چکے ہیں اور دنیا بھر کے کھلاڑی ہندوستان کے ان علاقائی کھیلوں کو بڑے شوق سے کھیلتے ہیں۔ کشتی، بھالا پھینک اور تیراکی ایسے کھیل ہیں جو قدیم زمانے سے ہمارے ملک میں کھیلے جاتے رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں کشتی کو مل یدھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مل یعنی پہلوان اور مقابلے کو یدھ کہا جاتا ہے۔ عہد قدیم میں لکھی جانے والی مہابھارت اور رامائن جیسی مذہبی کتابوں میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں کشتی لڑی جاتی ہے۔ لوگوں نے اپنی صحت اور حفاظت کے لیے یہ کھیل ایجاد کیا تھا۔ لوگ اپنے خاندان کے افراد یا پڑوسیوں کے ساتھ کشتی لڑنے کی مشق کیا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے اس نے ایک فن کی شکل اختیار کر لی۔ پرانے زمانے میں کشتی کے مقابلے میلوں اور مذہبی تہواروں میں ہوا کرتے تھے۔ اس فن کو بادشاہوں کی سرپرستی بھی حاصل رہتی ہے۔ آمنے سامنے موجود دونوں کھلاڑی اپنی جسمانی قوت اور ہنرمندی ایک دوسرے پر آزماتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا داؤ لگایا جائے کہ مقابل کھلاڑی چت ہو جائے۔ کشتی کو دنگل اور پہلوانی جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ کشتی کے شوقین لوگ
अपने घरों के आसपास अखाड़े बनाते हैं। ये अखाड़े कच्ची मिट्टी के एक मैदान की शक्ल में होते हैं। भाला फेंक भी एक खेल है। एक मखसूस दूरी से खिलाड़ी हाथ में भाला लेकर भागता हुआ आता है और एक ख़ास ज़ाविये से उसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकने की कोशिश करता है। इससे खिलाड़ी के बाजुओं की ताकत का अंदाज़ा तो होता ही है, साथ ही इस बात का फैसला भी होता है कि उसने कितनी महारत से भाला फेंका है। ये खेल ओलंपिक खेलों में भी शामिल है। दुनिया भर के मुल्क इसमें हिस्सा लेते हैं। हमारे मुल्क ने भी इस खेल में सोने और चांदी के तमगे जीते हैं। तैराकी हमारे मुल्क का एक मशहूर खेल है। लोग पहले दरियाओं और नहरों को तैर कर पार किया करते थे। लोगों ने सोचा कि चलो आपस में मुकाबला करके देखते हैं कि कौन पहले उस पार पहुंचता है। इस तरह तैराकी का मुकाबला शुरू हुआ। तैराकी में हाथ और पैरों को एक ख़ास अंदाज से घुमाते रहना होता है। सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना होता है। ये बहुत दिलचस्प खेल है, लेकिन इसे पहले किसी माहिर तैराक या कोच की मदद से सीखना चाहिए, फिर तैराकी शुरू करनी चाहिए। बच्चों के साथ साथ नौजवानों में भी जो खेल मकबूल हैं, उनमें कबड्डी सरे फहरिस्त है। ये जनूबी एशिया का मकबूल और पसंदीदा खेल है। 2010 के आलमी कप के बाद कबड्डी को बैनुल अक़वामी खेल का दर्जा दिया गया है। इसमें सभी खिलाड़ियों को हर वक्त मुखालिफ टीम की तरफ से मुहतात रहने की ज़रूरत होती है और अपने बचाव के तरीक़ों को जहन में रखना पड़ता है। कबड्डी के लिए किसी साजो सामान या एहतमाम की ज़रूरत नहीं होती। कबड्डी की एक टीम 7 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। दरमियान में एक लाइन खींची जाती है। एक तरफ का खिलाड़ी लाइन उबूर करके दूसरी तरफ की टीम के खिलाड़ियों के जत्थे में आकर किसी एक खिलाड़ी को या एक से ज़्यादा को छूकर वापस लौट जाता है। इस तरह इस टीम को एक पॉइंट दिया जाता है। अगर मुखालिफ टीम इस खिलाड़ी को छूकर वापस जाने में नाकाम बना दे तो पॉइंट मुखालिफ टीम के खाते में जमा हो जाता है। आने वाले खिलाड़ी को कबड्डी 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 की मुसलसल गर्दान करनी होती है और उसमें सांस लेने की इजाज़त नहीं होती। जहाँ सांस टूटती है वहाँ पॉइंट नहीं मिलता। हमारे मुल्क का एक और मशहूर खेल गिल्ली डंडा है। इसमें एक गिल्ली और एक डंडा होता है। खिलाड़ी को एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को डंडे की मदद से ज़्यादा दूर फेंकना होता है। ये गिल्ली यानी लकड़ी का छोटा टुकड़ा 4 से 8 इंच लंबा और कुतर में 1 से 2 इंच तक मोटा होता है। इसके दोनों सिरों को तराश कर मखरूती शक्ल दी जाती है। इस मखरूती साख्त की लकड़ी यानी गिल्ली के किनारे पर जब डंडा मारा जाता है तो ये गिल्ली हवा में उछलती है। फिर इस डंडे से इसे दोबारा मारा जाता है और ये दूर जाकर गिरती है। इसके बाद डंडे को ज़मीन पर रख दिया जाता है और खिलाफ टीम का खिलाड़ी वहाँ से गिल्ली को उठाकर दूर से ही वापस डंडे की तरफ मारता है। अगर गिल्ली डंडे को लग जाए तो पॉइंट नहीं मिलता
वरना खेलने वाले के खाते में 1 पॉइंट लिख दिया जाता है। रस्सा कशी भी एक ऐसा खेल है जिसमें बच्चे और बड़े दोनों दिलचस्पी लेते हैं। ये खेल एक खुले मैदान में खेला जाता है। इसमें 2 टीमें होती हैं जिनमें शामिल खिलाड़ियों के वज़न तकरीबन बराबर होते हैं। इस खेल में 30 से 40 फीट लंबी, मोटी और मजबूत रस्सी के बीच में 3 अलग-अलग रंग के निशान लगाए जाते हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत से एक साथ रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं। दरमियानी निशान को अपनी जानिब खींच लेने वाली टीम मुकाबला जीत जाती है। खेलों की दुनिया का एक और अहम खेल खो खो है। खो खो भी हमारे मुल्क का एक मकबूल खेल है। आपने इसे अपने स्कूल में साथियों के साथ या घर में ख़ानदान के लोगों के साथ खेला होगा। इसमें भी 2 टीमें एक दूसरे से मुकाबला करती हैं। हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम के तो खिलाड़ी ज़मीन पर कुछ इस तरह उकड़ू बैठ जाते हैं कि एक दूसरे के बराबर में बैठे खिलाड़ी का रुख मुखालिफ समत में होता है। दूसरी टीम का एक खिलाड़ी दौड़ता हुआ आता है और बैठे हुए खिलाड़ियों के गिर्द चक्कर लगाता है। फिर बैठे हुए खिलाड़ी को उठाकर उसके पीठ पर धप्पा मारना होता है और उसे खो कहते हैं। जिस खिलाड़ी को खो मिलती है वो फ़ौरन मुकाबिल खिलाड़ी के पीछे दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बैठे हुए खिलाड़ी बीच में से निकलकर नहीं भाग सकते, लेकिन अपने साथी खिलाड़ी की पीठ पर हाथ मारकर उसे खो दे सकते हैं। ये खेल बड़ा दिलचस्प है और इसे कम या ज़्यादा खिलाड़ियों के साथ भी खेला जा सकता है। 2025 में पहली बार हमारे मुल्क में खो खो आलमी कप का इनकाद हुआ, जिसमें ख़वातीन और मर्द दोनों टीमों ने पहला मकाम हासिल किया। पतंगबाजी भी एक दिलचस्प खेल है। ये दुनिया के कई मुल्कों में खेला जाता है। इस खेल में एक धागे की मदद से आसमान में पतंग उड़ाई जाती है। ऊपरी सतह पर हवा के कम दबाव और निचली सतह पर ज़्यादा दबाव की वजह से पतंग ऊपर उड़ती है। आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगें बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसी कंदील नुमा पतंगें भी उड़ाई जाती हैं जिनमें एक छोटा सा दिया रख दिया जाता है जो दूर से बड़ी खुशनुमा मालूम होती है। हमारे मुल्क में बसंत पंचमी, मकर संक्रांति और यौम आज़ादी के मौके पर पतंगबाजी की जाती है। बच्चों के कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिन्हें खेलने के लिए खुली जगह दरकार होती है। इन खेलों में पिट्ठू, पकड़म पकड़ाई और आँख मिचौली वगैरह शामिल हैं। दूसरी तरफ कुछ खेल छोटी सी जगह पर भी खेले जा सकते हैं, जैसे बित्ता कूद और लट्टू वगैरह। बित्ता कूद में 5 मुस्ततील खाने ज़मीन पर बनाए जाते हैं, जिनमें तीसरा और 5वां खाना दरमियान में लकीर खींचकर 2 खानों में तकसीम कर दिया जाता है। एक छोटा सा पत्थर लेकर खानों में फेंका जाता है और उसको उठाने के दौरान अगर लाइन पर पाँव आ गया तो
बारी ख़त्म हो जाती है। लट्टू को बच्चे बड़े शौक़ से खेलते हैं। लट्टू लकड़ी का गोल तराशा हुआ 2 से 3 इंच का होता है। लट्टू के ऊपर का हिस्सा चौड़ा और नीचे का हिस्सा पतला होता चला जाता है और उस पतले हिस्से के सिरे में लोहे के कील या नोकदार चीज़ लगी होती है जिस पर लट्टू घूमता है। ऊपर से नीचे तक लट्टू के दरमियानी हिस्से में इंतहाई फनकाराना अंदाज में डोरी लपेटने की जगह तराशी गई होती है। इस हिस्से पर डोरी लपेटकर खींची जाती है और लट्टू बड़ी तेज़ रफ्तार से घूमता है। 2 खिलाड़ी अपने अपने लट्टू इस तरह घुमाते हैं कि उनके घुमाए हुए लट्टू से दूसरे का घूमता हुआ लट्टू टकराकर गिर जाए। खेल हमारी दिलचस्पी का सामान होते हैं और ये ज़रूरी भी हैं। खेलों से बच्चों में मोहब्बत और हौसलामंदी के साथ साथ एक दूसरे की मदद करने का जज्बा भी पैदा होता है। खेल हर सतह पर खेले जाते हैं। किसी गांव से लेकर बैनुल अक़वामी सतह तक मुकाबले होते हैं। हमारे मुल्क में खेले जाने वाले बेशतर खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल बनाने के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से खेलो इंडिया और फ़िट इंडिया मुहिम चलाई जा रही हैं। साथ ही खुसूसी ज़रूरियात के हामिल बच्चों के लिए भी खेल के मौक़े और सहूलियात फ़राहम की जाती हैं। पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो, पैरा निशानेबाजी और पैरा टेबल टेनिस वग़ैरह के लिए आलमी सतह पर पैरा ओलंपिक्स के नाम से खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। 2024 में मुनक्किद होने वाले पेरिस पैरा ओलंपिक में हमारे मुल्क के खिलाड़ियों ने आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए 29 तमग़े जीते, जो हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की पैरा ओलंपिक्स मुकाबले में अब तक की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है। अज़ीज़ तलबा, अभी हमने ये सबक पढ़ा। अब हम इस सबक में आए हुए कुछ नए लफ्ज़ों को समझ लेते हैं। पहला लफ्ज़ है चाको चौबंद। इसके मानी है फुर्तीला। एक लफ्ज़ है मकूला। मकूला कहते हैं किसी दाना का कौल। एक लफ्ज़ आया है ख़ित्ता। ख़ित्ता कहते हैं इलाक़ा। हस्सास। हस्सास के मानी है ज़्यादा महसूस करने वाला। एक लफ्ज़ है तक़वियत। तक़वियत यानी मज़बूती, क़ुव्वत। एक लफ्ज़ आया है दिफ़ा। दिफ़ा कहते हैं हिफाजत या बचाव को। एक लफ्ज़ है ज़ाविया। 2 ख़ुतूत के मिलने की जगह वो कोना जो 2 ख़त्त मुस्तक़ीम के एक नुक्ते पर मिलने से बनता है, इसे अंग्रेज़ी में एंगल कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, अभी हमने ये सबक पढ़ा और उसके मानी समझे। अब हम कुछ बात करते हैं इस सबक के बारे में। खेल तफरीह का अहम ज़रिया होने के साथ जिस्मानी, ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद रहने में भी मददगार होते हैं। खेलों से हमारे अंदर जोश पैदा होता है और मश्क की आदत पड़ती है। खेल यकजहती के जज्बे को भी फ़रोग़ देते हैं। हमारे मुल्क में खेले जाने वाले बेशतर खेलों का मज़बूत ढांचा तैयार करने के लिए खेल इंडिया और फ़िट इंडिया मुहिम चलाई गई है। ये मुहिमात हमारे इलाक़ाई खेलों को फ़रोग़ देने के लिए शुरू की गई हैं। अज़ीज़ तलबा, अभी हमने ये सबक पढ़ा और समझा।
अब आपसे कुछ सवाल हैं। एक बड़ा मशहूर कौल है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आप इससे क्या समझते हैं? दूसरा सवाल है, खुसूसी ज़रूरियात के हामिल बच्चों के लिए खेलों के कौन कौन से मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं? तीसरा सवाल है, खेलों से किस तरह इत्तेहाद, हौसलामंदी और आपसी ताउन का जज्बा फ़रोग़ पाता है? अब एक आखिरी सवाल, आपकी ज़िंदगी में खेल किस तरह से अहम हैं और आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, उसके बारे में तफसील से लिखिए। अज़ीज़ तलबा और नाज़रीन, आज हमने सबक हमारे खेल पढ़ा। इस सबक से हमने जाना कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी क्या अहमियत है, कैसे खेले जाते हैं। इसी तरह हम मज़ीद खेलों की जानकारी भी हासिल करते रहेंगे। तो आज की बात यहीं ख़त्म होती है। शुक्रिया, आदाब।